Hello, my dear students. I welcome you to this new lecture on top 50 NCRT point series. And today we're going to take this chapter from class 12. That chapter is the biotechnology, very important chapter, very important in terms of weightage in the NEET examination. So, without wasting time, let's begin our series of questions. So, question number one: what does it ask? It asks father of genetic engineering, and it's a factual question. There is only one name. The name is Paul Berg. Paul Berg is considered to be father of genetic engineering. Mind this point. Now, question number two. First recombinant DNA produced by dash in dash. So, if you talk about the NCRT, so and this question is asked, the answer will be Stanley Cohen and Herbert Boyer. These two scientists, they made the first recombinant DNA, successful recombinant DNA, in the year 1972. Mark this date and mark these two names, Stanley Cohen and Stanley Herbert Boyer. इन दोनों के फोटोज़ एंड इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी आपकी बुक पे लिखी हुई है. यू कैन गो एंड रीड देयर. सो क्वेश्चन नंबर थ्री, की प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. इट इज़ इन द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा. दो की प्रिंसिपल्स होते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के. नंबर वन इज़ genetic engineering. This is the first principle, genetic engineering. And number two is chemical or bioprocess engineering. Chemical or bioprocess engineering. These are the two key principles of our modern biotechnology. Okay. So father of genetic engineering, again I am saying Paul Berg. I'm highlighting this thing. Recombinant DNA first, Stanley Cohen and Boyer in the year 1972. And two principles of biotechnology, genetic engineering and chemical or bioprocess engineering. Okay. Okay. Now, question number four, very easy question. Bacterial cell wall is digested by. So, when you study the enzyme lyases, you study various lyases which digest the outer coat of the cell. And there you study bacterial cell wall. It is digested by an enzyme called as lysozyme. Never ever forget. Bacterial cell wall is digested by lysozyme. And question number five, what does it ask? Cytoplasm and organelles are cleared by. And you have to remove the cytoplasm and organelles by using the enzymes. If you recall, the enzymes are proteases and lipases. नेवर एवर फॉरगेट प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस. इनको हम यूज़ करते हैं साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स को क्लियर करने में ताकि हमारा डीएनए बाहर आ जाए. क्वेश्चन नंबर सिक्स, न्यूक्लिएजेस का डैश बॉन्ड्स. तो आपके न्यूक्लिएजेस जो होते हैं वो एसिड्स को कट करते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करते हैं. अब यहाँ से पूछ रहा है आपको कौन से बॉन्ड्स कट करते हैं. तो दो न्यूक्लियोटाइड्स में कौन सा बॉन्ड होता है? दो न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है. इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन. तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका आंसर आएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स. ओके. एंड क्वेश्चन नंबर सेवन आपका यहाँ पे है, डैश आर कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर्स. तो किनको बोलते हैं मॉलिकुलर सीजर्स? शाबाश. द आंसर इज restriction endonucleases. Restriction endonucleases are called as molecular scissors. तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या सीखा आपने? बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोजाइम चाहिए. साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीज और लाइपेजेस चाहिए. न्यूक्लियसेस को कट जब करते हैं तो कौन से बॉन्ड्स टूटते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स टूटते हैं. एंड मॉलिकुलर सीजर्स, ये किन को नाम रखा गया है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को नाम रखा गया है. तो 7 क्वेश्चन आपने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख लिए. तो चलो, आठवां पॉइंट जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, साइट एट विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक्ट इज. ये आपसे पूछ रहा है, द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज दैट साइट कॉल्ड वेयर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट्स द DNA. That site is called restriction site and it is a palindrome in nature. और अगर आपकी टेक्स्ट की वर्डिंग के हिसाब से जाए तो आपको यहाँ पे लिखना है that is called palindromic sequence. बट इसका आंसर आप रेस्ट्रिक्शन साइड भी लिख सकते हो अगर ऑप्शंस में हो. ठीक है. तो प्रेफरेंस देनी है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को एज पर द वर्डिंग ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. ओके. क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछ रहा है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बाय द वे क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में आप 5-3 और 5-3 में अगर दोनों स्ट्रैंड्स पे आओगे तो आपको सेम रीडिंग मिलती है. लाइक दिस आपके पास यहाँ पे GAATTC, ये इको R1 की सीक्वेंस है. तो इसको आप यहाँ से पढ़ो सेम आएगा, यहाँ से पढ़ो सेम आएगा. ठीक है. इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं.
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल रहा है फर्स्ट लेटर ऑफ नेम इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आर ई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कम्स फ्रॉम। तो फॉर एग्जांपल ये एक नाम है ECOR1, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसमें बहुत सारे लेटर्स है, बोल रहा है पहला कहाँ से आ रहा है। तो एंजाइम एस्चेरिचिया कोले से लिया गया है, तो ये ई एस्चेरिचिया से आया है, यानी कि जीनस से, ठीक है। तो इट कम्स फ्रॉम द जीनस ऑफ बैक्टीरियम, जीनस ऑफ बैक्टीरियम, जहाँ से हमने इसको आइसोलेट किया है इस एंजाइम को। ओके, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड इज, ये तो सबको याद होगा जिसने भी पढ़ी होगी बायोटेक्नोलॉजी। द आंसर इज वन एंड ओनली हिंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पे है, टुडे देयर आर डैश एंजाइम्स फ्रॉम डैश स्ट्रेन्स। तो ये आपका एनसीईआरटी का एक फैक्चुअल पॉइंट है। तो इसमें इस डाटा का आपको याद रखना है 900 एंजाइम्स है फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्या सीखा आपने, पहला लेटर जो होता है वो जीनस से आता है, अगले दो स्पीशीज से, स्ट्रेन से फिर आता है, और फिर रोमन न्यूमरल होता है ऑर्डर दिखाने के लिए। तो पहला कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ, हिंड सेकेंड। और आज हमारे पास कितने हैं, 900 कितनों से, 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। लाइगेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, लाइगेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू। जिस तरह काटने वाले को मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, उसी तरह जोड़ने वाले को ग्लू बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है आपको, डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड बाय। तो जब आप लाइजेज में डालते हो आपकी सेल, तो डीएनए अलग हो जाता है। तो डीएनए को अलग करने के लिए, फिर वहाँ से प्रेसिपिटेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक स्पेशल केमिकल, दैट इज़ चिल्ड इथेनॉल। कभी भूलना नहीं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स इज डन बाय। तो जब आप डीएनए को फ्रैगमेंट करते हो, तोड़ते हो बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर उसके वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो है वो आपको अलग करने पड़ते हैं, उसके लिए एक टेक्निक लगती है, सबको याद होगा, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, भूलना नहीं है, ठीक है। तो क्या सीखा आपने, लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, डीएनए को प्रेसिपिटेट करेंगे किससे, चिल्ड इथेनॉल से, और फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करते, कौन सी टेक्निक यूज़ करते, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, भूलना नहीं है। तो 14 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15, तो यू में आस्क कि मैं ये मोड यूज़ क्यों कर रहा हूँ ऐसे पॉइंट वाइज, और एमसीक्यूज़ क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करने बैठेंगे तो आपके बहुत कम ही क्वेश्चन डिस्कस होंगे इतने टाइम में, ठीक है। तो लेकिन अगर जब हम ये मोड अप्लाई करते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं विद इन नो टाइम, ठीक है। तो अगेन विदाउट वेस्टिंग टाइम, टेल मी डीएनए इज डैश चार्जड, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस, डीएनए इज नेगेटिवली चार्जड, इट इज़ नेगेटिवली चार्जड, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए मूव्स टुवर्ड्स डैश इलेक्ट्रोड। तो डीएनए अगर नेगेटिव चार्जड है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, जिसको आप एनोड बोलते हो, व्हाट यू कॉल एज एनोड, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या एनोड की तरफ मूव करता है डीएनए। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप इन फ्रैगमेंट्स को अलग करते हो, देन उसके बाद एक स्टेन डालते हो उस पर, उस स्टेन का नाम क्या है, शाबाश, द स्टेन इज इथिडियम ब्रोमाइड, द स्टेन इज इथिडियम ब्रोमाइड, इसको आप कभी कभी ETBR की नोटेशन से भी लिखते हो, वेरी गुड। सो गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 18, डीएनए इज सीन अंडर, ठीक है। स्टेनिंग के बाद डीएनए को हम किस लाइट में देखते हैं, वही क्वेश्चन है। तो एवरीवन शुड बी क्लियर विद दिस, वी ऑब्जर्व द डीएनए स्टेन डीएनए अंडर यूवी लाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है, डीएनए अपीयर्स एज डैश बैंड्स। तो फिर यूवी लाइट में जब आपने देखा तो किस कलर के बैंड्स आ जाते हैं, तो भूलना नहीं है, ऑरेंज कलर के बैंड्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कटिंग ऑफ डीएनए ऑफ जेल इज कॉल्ड एज। तो डीएनए जेल कट करते हैं हम, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, दैट टेक्निक इज कॉल्ड इल्यूशन, कभी नहीं भूलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे जाएंगे, सुपर फास्ट, डीएनए इज एम्पलीफाइड बाय, कौन सी टेक्निक से डीएनए एम्पलीफाई करते हैं, शाबाश, द आंसर इज PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पूछा जा सकता है। तो क्या सीखा, डीएनए नेगेटिवली चार्जड है, डीएनए एनोड की तरफ जाता है, डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं, डीएनए को यूवी लाइट में देखते हैं, फिर कैसे बैंड्स नजर आते हैं, ऑरेंज कलर्ड बैंड्स, फिर कट करने को क्या बोलते हैं, इल्यूशन, और एम्पलीफाई करना हो, बहुत सारी कॉपीज बनानी हो, तो कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, PCR। तो ये आपके 21 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 22nd क्वेश्चन देखेंगे, एंजाइम यूज्ड इन PCRs। तो PCR में आप एक पॉलीमरेज, स्पेशल पॉलीमरेज यूज़ करते हो, उस पॉलीमरेज को क्या बोलते हो, डीएनए पॉलीमरेज है, दैट पॉलीमरेज इज कॉल्ड एज टैग पॉलीमरेज,
टैग पॉलीमरेज, ये थर्मस एक्वाटिकस से ऑब्टेन किया गया है। तो टी का मतलब है थर्मस और ए क्यू का मतलब है एक्वाटिकस। तो एक थर्मोफाइल है थर्मस एक्वाटिक्स, इससे एक डीएनए पॉलीमरेज लिया गया है जो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल है। इसको क्या बोलते हैं? टैग पॉलीमरेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेप्स ऑफ पीसीआर। तो कितने स्टेप्स है? 3 स्टेप्स है। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है डिनेचुरेशन, सीक्वेंस पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है। दूसरा स्टेप क्या है? शाबाश, अनीलिंग। और तीसरा स्टेप क्या है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन तो कभी नहीं भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 3 स्टेप्स ऑफ पीसीआर। तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जाएंगे। 30 साइकिल्स प्रोड्यूस, ये 30 साइकिल्स वाला आपकी बुक पे लिखा गया है। तो 30 साइकिल से कितने कॉपीज ऑफ डीएनए बनते हैं? 1 कॉपी? नो, 1 बिलियन कॉपीज। सो वेरी इफेक्टिव टेक्निक, 1 बिलियन कॉपीज कैन बी obtained आफ्टर 30 साइकिल्स ऑफ पीसीआर ऑन ए डीएनए। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जाएंगे। वेक्टर की प्रॉपर्टीज पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेक्टर की कितनी प्रॉपर्टीज होती है? 3 प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी? सबसे पहली प्रॉपर्टी और होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, ठीक है। एंड नंबर 3, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। तो ये 3 प्रॉपर्टीज एक वेक्टर को बनाते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है मोस्ट कॉमन वेक्टर यूज्ड। तो मोस्ट कॉमन वेक्टर कौन होते हैं? प्लाज्मिड्स। और आपकी बुक का हवाला ले तो प्लाज्मिड्स में कौन सा प्लाज्मिड? PBr322 विच इज़ शोन इन योर बुक, ठीक है, भूलना नहीं है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 27, ये क्या पूछ रहा है हमें? जीन यूज्ड फॉर सिलेक्शन, ठीक है। जिस जीन को सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं उस जीन को क्या बोलते हैं? दैट इज़ अ सिलेक्टेबल मार्कर, दैट इज़ सिलेक्टेबल मार्कर। उसको हम, उस जीन को सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेट सेल और नॉन ट्रांसफॉर्मेट सेल को अलग करते हैं। ट्रांसफॉर्मेट को आइडेंटिफाई करते हैं और अलग करते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेट से। मोस्ट कॉमन सिलेक्टेबल मार्कर कौन होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। जैसे आप देखा होगा आपने PBr322 में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। तो क्या सीखा? टैग पॉलीमरेज किस में यूज़ होता है? पीसीआर में। एक थर्मस एक्वाटिक से ऑब्टेन किया हुआ पॉलीमरेज है। पीसीआर में कितने स्टेप्स? 3, डिनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन, ठीक है। 30 साइकिल से कितने कॉपीज बनते हैं? 1 बिलियन कॉपीज बनते हैं। वेक्टर के कितनी प्रॉपर्टीज? 3। कौन कौन? और कौन? रिकॉग्निशन साइट, और कौन? सिलेक्टेबल मार्कर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे कॉमनली यूज वेक्टर्स कौन है? प्लाज्मिड्स। हमें कौन सा प्लाज्मिड याद रखना है? PBr322। क्वेश्चन नंबर 27, को जीन जो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेट के लिए यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादातर कौन सा जीन्स यूज किए जाते हैं सिलेक्टेबल मार्कर? वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। तो दीज आर योर 28 क्वेश्चंस। लेट्स गो टू नेक्स्ट 29th क्वेश्चन। रिकम्बिनेंट कॉलोनीज गिव डैश कलर इन क्रोमोजेनिक मीडियम। ये बोल रहा है, देखो या हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन को यूज़ करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नॉर्मली ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर उसमें इंसर्ट गया हो, यानी कि अगर कॉलोनी रिकम्बिनेंट बनी हो तो कोई भी कलर नहीं मिलेगा। तो गिव नो कलर, नो, बड़ा नो, नो कलर इन क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो रिकम्बिनेंट हुआ तो कोई भी कलर नहीं आएगा, लेकिन नॉन रिकम्बिनेंट हुआ तो ब्लू कलर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कल्चरिंग किस में किया जाता है? कल्चरिंग इज डन इन, तो उन वेसल्स को क्या बोलते हैं? शाबाश, देयर इज ओनली वन आंसर। उन वेसल्स को बोलते हैं बायोरिएक्टर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ बायोरिएक्टर, ठीक है। तो बायोरिएक्टर का वॉल्यूम कितना होता है? 100 to 1000 लीटर्स, इतना वॉल्यूम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ जाएंगे। कॉमन यूज्ड बायोरिएक्टर्स, कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स। तो कौन से बायोरिएक्टर्स हम कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टायरिड टाइप, स्टायरिड टाइप बुक में लिखा है स्टायरिड टाइप, और नॉन स्टायरिड टाइप होते हैं बायोरिएक्टर्स, लेकिन स्टायरिड टाइप कॉमनली यूज्ड है, ठीक है, भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, कंपोनेंट्स ऑफ बायोरिएक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे पहले रिकॉल करेंगे, रिकम्बिनेंट कॉलोनीज कोई भी कलर नहीं देते हैं, और कल्चरिंग करते हैं हम ट्रांसफॉर्मेट्स की बायोरिएक्टर्स में। उनका वॉल्यूम इतना होता है 1000 to 100 to 1000, ये याद रखना है, एनसीईआरटी की डाटा है। और मोस्ट कॉमनली हम स्टायरिड टाइप बायोरिएक्टर्स यूज़ करते हैं। अब क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक कंपोनेंट होता है पीएच कंट्रोल सिस्टम, दूसरा होता है O2 डिलीवरी सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम,
तीसरा क्या होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम। फोर्थ क्या होता है, ठीक है, सैम्पलिंग पोर्ट होता है आपके पास, ठीक है, सैम्पलिंग पोर्ट। और क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, एक्स्ट्रा। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है, पीएच कंट्रोल, ऑक्सीजन डिलीवरी, फोम, सैम्पलिंग पोर्ट और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। अच्छे से इसको रीडिंग दे दी। क्वेश्चन नंबर 34, प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन इज कॉल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे मार्क करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन और आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट को? इट इज़ कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इट इज़ कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन से एक पॉइंट है, टोटल रिकमेंडेड थेरेप्यूटिक्स अभी तक कितने हैं? तो आंसर इज 30 एज पर योर टेक्स्ट बुक। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन को बोलते हैं। टोटल रिकमेंडेड थेरेप्यूटिक्स हमारे पास कितने हैं? 30। तो लेट्स गो टू 30, it is 34, 35, 36th question. So our 36th question from biotechnology, pro insulin has extra। तो आपको पता होगा बीटा सेल जो इंसुलिन बनाती है, ये मान लीजिए ये बीटा सेल है, ये जो इंसुलिन पहले बनाती है तो वो होता है प्रो इंसुलिन, वो होता है प्रो इंसुलिन, ठीक है, वो होता है प्रो इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन में एक्स्ट्रा क्या होता है, उसमें एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड होती है। तो इसी सी पेप्टाइड कट की जाती है, ये सी पेप्टाइड कट की जाती है, ठीक है, फिर बनता है हमारा मैच्योर इंसुलिन। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा है ये सी पेप्टाइड, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, प्रो इंसुलिन में एक्स्ट्रा क्या है, इसमें एक्स्ट्रा एक स्ट्रेच होता है, दैट स्ट्रेच इज कॉल्ड एज सी पेप्टाइड। तो क्वेश्चन नंबर 37, इली लिली प्रोड्यूस्ड इंसुलिन इन, कब इंसुलिन बनाया था इली लिली ने? तो 1983, सिंगल आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, इली लिली यूज डैश एज होस्ट। तो इली लिली ने काम करने के लिए, इस इंसुलिन बनाने के लिए किसको होस्ट यूज़ किया था? तो दे यूज एस्चेरिचिया कोलाई एज होस्ट। 39, फर्स्ट जीन थेरेपी वाज गिवन इन, द आंसर इज 1990। ओके, जीन थेरेपी वाज गिवन फर्स्ट फॉर विच डिजीज? तो डिजीज़ के बारे में आपको पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो डिजीज़ थी SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। एंड ये किसकी वजह से होती है? इट इज़ ड्यू टू डिफिशिएंसी या डिक्रीज इन ADA लेवल्स। ADA जीन म्यूटेट होता है। व्हाट इज ADA? ADA इज एडिनोसिन डीअमाइनेज। तो एडिनोसिन डीअमाइनेज जीन की इस एंजाइम की कमी से ये डिजीज़ हो जाती है सिकिड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसी डिजीज़ के लिए पहले जीन थेरेपी दी गई थी 4 ईयर ओल्ड गर्ल को 1990 में। क्वेश्चन नंबर 41, RNAi, what is RNAi? RNAi means RNA interference was used to produce। इस टेक्निक को क्या बनाने के लिए यूज़ किया गया था? तो एज पर योर टेक्स्ट बुक, इट वॉज यूज टू प्रोड्यूस नेमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको, नेमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको, nematode resistant tobacco. Never ever forget this. So question number 42, we are about to make the half century। BT cotton is resistant to, BT cotton किसके लिए resistant होता है? ठीक है, it is resistant to pests, ठीक है, which mainly include insects, and there are 3 groups of insects you must always remember: Lepidopterans, Coleopterans एंड डिप्टेरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपकी बुक से निकाली है। तो क्या सीखा आपने? सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन में होता है लेकिन मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता। इली लिली ने इंसुलिन 1983 में बनाया, उन्होंने ई कोलाई को यूज़ किया एज होस्ट। पहली जीन थेरेपी 1990 में मिली। और जीन थेरेपी किस डिजीज़ के लिए पहले की गई? SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। इस डिजीज़ में क्या होता है? ADA यानी कि एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम की लेवल में ड्रॉप हो जाता है, कम ही हो जाती है। RNAi मीन्स RNA इंटरफेरेंस। इस डिजीज इसको इस फिनोमेना को किसके लिए यूज़ किया गया था? निमेटोड रेजिस्टेंट टबैको बनाने के लिए, ठीक है। एंड निमेटोड कौन सा? मिलियोडिगाइन इनकॉग्निशिया। एंड 42 क्वेश्चन बोल रहा है BT कॉटन किसके लिए रेजिस्टेंट बनाता है कॉटन को? ये कॉटन किसके लिए रेजिस्टेंट होता है? पेस्ट्स के लिए। पेस्ट्स में इंसेक्ट्स के 3 ग्रुप्स आते हैं, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स, जिनके अगेंस्ट ये सिक्योरिटी देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43,
क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछ रहा है आपको, क्राई प्रोटीन बिकम्स एक्टिव एट डैश। तो बीटी कॉटन में ये क्राई प्रोटीन बन जाता है। तो क्राई प्रोटीन फिर इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट खाता है तो इंसेक्ट के गट के फोर गट के किस पीएच पे एक्टिव हो जाता है, तो द पीएच इज अल्कलाइन, अल्कलाइन पीएच की वजह से एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 44, क्राई प्रोटीन बाइंड्स टू। चलो फिर जब ये हो गया क्राई प्रोटीन एक्टिवेट, तो फिर ये कहाँ अपनी तबाही मचाता है, कहाँ बाइंड करता है, तो इट बाइंड्स टू मिड गट एपिथेलियल सेल्स, फिर इनको डिस्ट्रॉय करता है। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे क्या पूछ रहा है, इंडिया हैज़ डैश वैराइटीज ऑफ राइस। तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, द आंसर इज 1 लाख एज पर योर एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 46, डैश डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज ऑफ बासमती। तो कितनी है, द आंसर इज 27। क्वेश्चन नंबर 47, use of bioresources by MNCs. What do you mean by MNCs? Multinational companies is called. What is it called? It is called as biopiracy. Never ever forget. Question number 48. US means United States gave false patent to Basmati in. So apparently यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बार बायोपायरेसी के शिकार हो गए थे। उन्होंने एक पेटेंट दिया था, एक राइट दिया था एक कंपनी को बासमती के लिए, लेकिन वो बासमती चुराया हुआ बासमती था। तो इन्होंने कब दिया था, डेट आपकी बुक में लिखा है 1997। और बस 2 रन लगाने हैं। जेनेटिक रिसर्च इज गवर्नड बाय। तो जेनेटिक रिसर्च को कौन सी कमेटी गवर्न करती है, कंट्रोल करती है, तो द कमेटी इज GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग एसोसिएशन कमेटी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को किस लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको एक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट डिजीज़ इज एम्फाइसीमा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो क्या सीखा लास्ट के इन 7 क्वेश्चन से, अल्कलाइन 8 क्वेश्चन से, अल्कलाइन पीएच पे क्राई प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है जो बीटी कॉटन में होता है। ये फिर मिड गट इप्थिलियल सेल्स में तबाही मचाता है। इंडिया के पास 1 लाख वैराइटीज़ ऑफ राइस है। इंडिया के पास 27 डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज़ ऑफ बासमती है। अगर बायो रिसोर्सेज को MNCs एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको बायोपायरेसी बोलते हैं। 1997 में US ने एक फॉल्स पेटेंट दिया था बायोपायरेसी के रिलेटेड। एंड जेनेटिक रिसर्च को जेनेटिक इंजीनियरिंग एसोसिएशन कमेटी कंट्रोल करती है। और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑल दीज पॉइंट्स वेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिगार्ड्स टू योर नीट एग्जामिनेशन। एंड ऑलमोस्ट आपके सारे एसेंशियल पॉइंट्स इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप you enjoyed all these questions, recalling all these questions. Okay, and last but not least, a very big thank you. Keep smiling and keep prepared.